أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. محترم سامعین، مسلمانوں اور ایمان والوں کی پہچان قرآن کریم نے جو اپنے انداز میں بتائی ہے، اس میں ایک صفت مسلمان کی یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو اللہ جل جلالہ والوں سے اشد محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کہ اس پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا. تو تعالی شانہ نے یہ بات حضور نبی علیہ السلام کی سنت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اشارہ فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام مجھے آپ سے بہت محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے، تو اپنی جان کے علاوہ. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کامل نہیں ہے، ایمان بھی کامل نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ایمان کامل ہوا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سب پر مقدم کرنا اور آپ علیہ السلام کی محبت اب تعالی شانہ کی محبت ہے، یہ علامت ہے ایمان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں. اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہٹاتی ہیں اللہ اور اس کے پاک رسول کی محبت سے. اس میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ اور 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں قرآن کریم میں کہ یہ بھی رکاوٹ ہے اللہ جل جلالہ کی محبت میں، دین پر چلنے میں. تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی جو محبت کی جو پہچان ہے اس پر ایمان کی صداقت بتائی گئی کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اس لیے قرون اولیٰ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو سب سے زیادہ محبت حق تعالی شانہ سے ہوتی تھی، اللہ جل جلالہ والوں کے پاک رسول سے ہوتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ان کی دیوانگی ایسا دیوانہ پن تھا ان میں کہ آپ علیہ السلام کی محبت پر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی غالب نہیں آنے دیتے تھے. تو لیکن زمانہ جتنا دور ہوتا گیا حضور علیہ السلام سے اتنی اس محبت میں کمی آتی چلی گئی. اور اب جو ہے ہم اس طرح کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے کہ اللہ جل جلالہ والوں کی محبت پر جہاں اور جتنی محبتیں غالب آئی اس میں کچھ ریڈی میڈ حضرت جیوں کی محبت بھی غالب کر دی گئی. اس میں سے ایک یہ شکیل بن حنیف صاحب ہیں، بالکل انتہائی درجے کا بے غیرت بے علم انسان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف نظام الدین مرکز میں کچھ دن رہا ہے، بتاتا ہے ایسا، بہت زیادہ صحبت اس نے نہیں اٹھائی ہے. اور پھر وہاں سے لکشمی نگر دلی میں، لکشمی نگر ایک محلہ ہے، وہاں مسجد میں آ گیا، وہیں نماز پڑھتا تھا. وہیں پر اس نے یہ دعوی مہدیت کیا تو وہاں لوگوں نے پٹائی کی اور پھر اس نے وہاں شرعام توبہ کی، معافی مانگی اور وہاں سے بھاگ کر کے پھر یہ یہاں اورنگ آباد آ پڑا اس کے علاقے میں. اور پھر ایسی من گھڑت باتیں اس نے بتانی شروع کی جو بالکل بے سر پیر کی باتیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور جیسے ہمارے ملک میں بیوقوف آدمیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد احمقوں کی ہے. تو وہ دعوت کے کام کرتے کرتے جب کہ حقانیت کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، ایمان کی اعمال کی تصریحات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، سمجھی تھی، فضائل اعمال پڑھی تھی، مسجد کے حلقوں میں رہے تھے، 4 مہینے لگائے، شریعت پر زندگی آئی. اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کے چکر میں اس نے ایک بیوقوفانہ دلیل یہ دی جب اس وقت میں اورنگ آباد میں اجتماع ہو رہا تھا کہ ایک سفیانی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، وہ سفیانی بتا دیا حضرت مولانا سعد صاحب کو، یہ سفیانی ہے اور اورنگ آباد کا اجتماع جو ہے یہ اس کا لشکر ہے اور وہ میرے مقابلے پر آئے گا لیکن مجھ سے بغیر ملے ہی چلا جائے گا. جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے بھی کوئی ملنے جائے گا، عام آدمی نہیں ملتا، ایک بڑا آدمی اس سے ملے گا. ہاں چلیے اس کی کوئی وقت ہوتی ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس ہوتا تو ایک بات الگ تھی. وداؤٹ اسٹیٹس اس نے اس طرح کی بات پھینک دی اور اس کے پیچھے چلنے والے احمقوں نے وہ بات مان لی. اب بتائیے حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں اگر تھوڑا سا انہوں نے جان لیا ہوتا کہ وہ سفیانی نہیں ہے
حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہے وہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد جو نسل آئی ہے اس میں سے ہے، صدیقی ہے، صدیقی کو سفیانی پر مبدل کر دیا۔ تو ایک اگر آدمی تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو تو وہ جا کر کے اگر دلی میں تحقیق کر لے، اور دلی کو چھوڑ دیجیے کاندلا میں چلے جائے، وہاں پہ خاندان کی تحقیق کر لی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو پتہ چلے گا کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ان کا دور دور کا رشتہ نہیں ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی ہے، اور بنو امیہ نے بہت بہت لمبے عرصے تک اسلامی حکومت، پہلی خلافت انہوں نے قائم کی، اور اس کے بعد جب بنو عباس نے اس خلافت کا خاتمہ کیا پھر یہ وہاں سے بھاگ کر کے اسپین چلے گئے، اور اکثر اس میں سے قتل کر دیے گئے تھے، کیونکہ یہ حال تھا بنو عباس کے زمانے میں جب یہ بنو امیہ سے لوگ خفا ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے سامنے کی جو جگہ تھی جو یتیموں کو دیا گیا تھا، بدر کے یتیموں کو، اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ایسے ظالم قسم کے لوگ تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بنو امیہ میں اچھے لوگ نہیں آئے، لیکن بہت زمانے تک ان میں اچھے لوگ آئے، لیکن کچھ برے لوگ بھی آئے، انہی بدنصیبوں میں حجاج بھی آیا۔ لیکن ان لوگوں نے حکومت، جہاں دیکھو ظلم کرنا ایک الگ چیز ہے، ظلم کو ہم کس آئینے سے دیکھیں گے، جو ظلم ہمارے زمانے کا ہو رہا ہے اس کو ہم ظلم سمجھیں گے، ایسا ظلم ہوگا، اس طرح کا نہیں تھا، ہاں لیکن اس کا کنسپٹ الگ تھا۔ حجاج کا جو ظلم و ستم مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم تھا، اگر اس کو آج لے آیا جائے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ عادل بادشاہ ہوگا، آج کے زمانے کا جو ظلم ہے، ایسا ظلم اس نے نہیں کیا، پھر بھی اسے ظالم بادشاہ مانا جاتا ہے، ظالم حاکم مانا جاتا ہے۔ تو ایسا ظالم حاکم آج لے آیا جائے تو وہ عادل کہلائے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمین جو ہے کتنی ظلم سے بھر گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کی اولاد میں ایک شخص ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا، یعنی ظلم کی ضد انصاف ہے، انصاف سے اس کو پر کر دے گا، سارے ظلم کا خاتمہ کر دے گا۔ تو بنو امیہ کے لوگ تو ہندوستان میں ہے ہی نہیں۔ جو سفیانی لشکر اس نے جو بتا دیا کہ آج یہ اورنگ آباد میں جو ہے وہ سفیانی لشکر لے کر آئے گا، تو اتنی بڑی حماقت، اور اس سے لوگ مان رہے ہیں۔ ایسی حماقت اس نے اپنے تمام دلائلوں میں دی ہے، بیوقوفی کی دلیل ہے اس کے ساتھ۔ مرزا قادیانی اور اس سے پہلے کے جتنے جھوٹے دجال آئے ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال آئیں گے اس مسیح الدجال کے آنے سے پہلے۔ وہ جو مسیح الدجال آئے گا وہ تو دعوی نبوت نہیں کرے گا، وہ خدا کا دعویٰ کرے گا۔ اس سے پہلے جھوٹے جو لوگ آئیں گے جو اس کی راہ کو ہموار کریں گے، اس میں 30 بڑے شیطان ہوں گے، اور وہ 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ خود ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کا دعویٰ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ آدمی ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام الگ آدمی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، اور وہ دمشق کے مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے پھر سیڑھی لگا کر کے ان کو اتار لیا جائے گا۔ تو یہ شخصیت جو ہے یہ آسمان سے نازل ہوگی، نہ کہ کسی عورت کے رحم سے پیدائش، وہ ان کی ہو چکی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو دو بالکل اپوزٹ سسٹم ہے ان کا دونوں کا، ایک کا پیدا ہونا ہے اور دوسرے کا نازل ہونا ہے، اور دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب دیکھ لیا گیا کہ اتنے بیوقوف آدمی ہیں کہ مجھے امام مہدی مان لیا، تو عیسیٰ ماننے میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مان لیا گیا۔ اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ساری ہسٹری ہے سب کی۔ تو ابھی تک 22 جھوٹے دجال ہوئے، مرزا قادیانی 22واں دجال ہے اور یہ 23واں۔ اگر اس نے اس کا رتبہ پایا، کیونکہ 26 مئی 1908 کو مرزا لائٹنگ کرتے کرتے مر گیا تھا، اس کے بعد سے 2008 اس کا 100 سالہ یوم وفات منایا گیا، اور اس میں قادیانی نے بڑے زور شور سے ایک تقریب منعقد کی تھی یہاں سے لندن تک، اور یہ 2008 میں 2019 یعنی 11 سال اور اوپر ہو گئے اس کو، 100 سال سے زیادہ۔ یہ تو ابھی نیا ہے، خود مرا بھی نہیں، ابھی زندہ ہی ہے۔
ये कितने दिन टिकेगा कितने दिन नहीं है, या इसके जानने वाले मानने वाले कितने दिन चलेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 22 हो चुके हैं, 8 अभी और आएंगे। हाँ, छोटे छोटे और भी होंगे जो इन 30 का रास्ता बनाएंगे, हमवार करेंगे और इस पर चलना लोगों का आसान कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बुराई एक माशरे में खड़ी की जाती है तो उस बुराइयों के उनसर जिन लोगों के अंदर होते हैं वो उधर जमा हो जाते हैं और इस तरह फिर एक तादाद बन जाती है और इसी तरह एक फिरका खड़ा हो जाता है। तो इसने जो अपनी अलामत और पहचान में से वो जलजले बताए और खिंजीर का कत्ल होना बताया और वो धुआं निकलना बताया आयरलैंड का। आयरलैंड में जो 2007 में वो धुआं निकला था वो दरअसल कुरान करीम में दुखान इसी नाम से दुखान धुएं को कहा जाता है और कयामत की निशानियों में से यह है कि जमीन के अंदर से धुआं निकलेगा। तो वो धुआं इसकी खुशकिस्मती गई है और हमारी बदनसीबी गई है। जो लोग उधर जा मिले उनकी बदनसीबी है कि वो धुआं निकला और उसने अपनी सदाकत में उसको सेट कर लिया। 1 हफ्ते तक वो धुआं आयरलैंड में जारी रहा और यूरोप के अक्सर ममालिक की उस फ्लाइट रद्द कर दी गई थी, इतना ज्यादा शिद्दत से वो धुआं निकला था। और हमारे मुल्क के ये जो शिमाली इलाका है वहां पर भी दिन में रात हो गई थी, क्योंकि तकरीबन 10 बजे इंडिया के हमारे मुल्क के नहीं 10 नहीं तकरीबन 8:30 या 9 बजे थे हमारे मुल्क में जब वो धुआं निकला था। तो सूरज को उसने उस तरफ से बिल्कुल बंद कर दिया था, अंधेरा हो गया था, बिल्कुल ऐसी रात हो गई थी वो जैसे आधी रात होती है, कुछ दिखाई नहीं देता था, रोड पर लाइटें जलाई गई थी, इतना अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर रहा और फिर वो फिर यहाँ पे जो हिंदू है उन्होंने उसे उससे जोड़ लिया कि जो श्री कृष्ण है हिंदू जिसे पूजते हैं कि उसने एक ऐसा कारनामा महाभारत की लड़ाई में किया था, सुदर्शन चक्र को सूरज के सामने कर दिया था, सूरज छिप गया था और वो जो उसका अभिमन्यु को मारने वाला था वो बाहर आ गया था और इतने में सूरज निकला, उसने कत्ल कर दिया। आज दोबारा फिर वह कुरुक्षेत्र की जमीन के ऊपर गई, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया था। हर आदमी उससे अपनी दलील पकड़ता है। कुरान करीम की ये दलील इतनी अजीम शान है कि यूरोप के ममालिकों के जितने अखबार है, दुनिया का जितना मीडिया है, किसी ने उसको शाया नहीं किया, किसी ने भी आयरलैंड के उस धुएं को नहीं बताया, मीडिया के किसी पेज पे उसको जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी पहले से ही लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। अगर इसको भी आया किया जाएगा, बताया जाएगा तो और तेजी से इस्लाम आ जाएगा। तो इस्लाम की जितनी निशानियां हैं उसको लोग जो है बताना नहीं चाहते, छिपाते हैं। और हम लोग चूंकि हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम इस्लाम के बारे में कम और इस्लाम के अलावा की जितनी चीजें उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। और जितनी मालूमात हमको है बहुत सारी मालूमात, लेकिन उसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। देखिए, अनपढ़ होना जाहिल होना 2 चीजों पर है। एक तो ये कि सिरे से कोई आदमी जानता ही नहीं है, ये भी आदमी जाहिल है, अनपढ़ है। एक आदमी वो भी पढ़ा लिखा जाहिल है जो जानता तो है लेकिन गलत जानता है। गलत जानना ये इल्म नहीं है, ये तो उस अनपढ़ से ज्यादा बदतर है ये जाहिल आदमी पढ़ा लिखा जिसे सही मालूम नहीं है, गलत जानता है। इसलिए दुनिया की जितनी महजब कौम है वो किसी गलत चीज पर सर्टिफिकेट नहीं देती। एक आदमी अगर LLB करे या MBBS करे, डिग्री लेकर के डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक MBBS का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो जाए, जबकि डिग्री गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं दी है। इसी तरह LLB लेकर के डायरेक्ट आदमी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन ना करवा दिया जाए। और बाद में अगर कभी किसी गलती की वजह से वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए या किसी MBBS डॉक्टर की किसी गलती की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए तो वो डिग्री बेमाना हो जाती है, वो कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ना ये वकालत की प्रैक्टिस करता ना वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाए तो डिग्री को भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर से बांध दिया गया है, उसको सही और गलत समझने के लिए, सही और गलत जानने के लिए। जो लोग इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अब वो नकल करके पास हुए हैं, सही है या गलत है, उस पर एक और वो क्या ना टेस्ट लगा दिया गया है, गेट जिसको कहा जाता है। अब ये गेट क्लियर करेगा, गेट बताएगा कि ये इंजीनियर वाकई हुआ भी है या नहीं हुआ है। और इसी तरह PhD करने वालों को पहले नेट से फुर्सत थी, अब नेट लगा दिया गया है, क्योंकि पहले पता चले कि ये जिसने एजुकेशन हासिल की है ये है भी कि नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि कहीं से ऐसे ही जाना डिग्री लेकर के फर्जी डिग्री हो या फिर नकल मार के पास हो गया और इसको ऐसे ही पीएचडी में दाखिला दे दिया जाए। हालांकि पीएचडी भी ऐसी पीएचडी होती है कि जो जिसके अंडर में वो की जाती है, उसके घर के बर्तन साफ करने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, लैट्रिन साफ करने पड़ती है, 3 साल तक ये काम करने पड़ते हैं। जो जितना गाजी कर लेता है उतना उसको जल्दी डिग्री दे दी जाती है। यह है दुनिया की एजुकेशन। लेकिन कुरान ने इसी एजुकेशन के बारे में नहीं कहा। कुरान करीम ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और यहाँ पर है वो एजुकेशन वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये उस वही पर ईमान लाए हुए हैं जो वही आप पर आ रही है, क्योंकि वही जो है वो अकलों से बाहर की चीज है। अकल उस पर रिसर्च नहीं कर सकती वही के ऊपर, उसको वही को अकल पकड़ नहीं सकती, बल्कि वही से अकल रहनुमाई हासिल कर सकती है। रहनुमाई हासिल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। इसलिए इस्लाम को सबसे पहला जो मरहला सामने पेश आया वो इर्तदाद का। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत से पहले जो इर्तदाद आया है, जिसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और आपने फरमाया कि मैं एक कुएं पर खड़ा हूं और उसमें से किसी कदर डोल निकालने वाले ने पानी के डोल निकाले। फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने 2 डोल निकाले, लेकिन वो बहुत कमजोरी के तहत खींचे, उनको किसी कदर उसमें कमजोरी थी जब उसको निकाल रहे थे। उसके बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत ताकत के साथ 10 डोल निकालकर पानी के बाहर निकाले। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब इसी तरह पूरा हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 साल आपने खिलाफत राशिदा के 2 साल पूरे किए और 2 साल के बाद आपका विसाल हो गया। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जो 10.5 साल है उसमें, क्योंकि 11 साल पूरे नहीं हुए, 10 और 11 के बीच में आपकी वफात हो गई। इन 10 सालों में पूरी दुनिया को इस्लाम का तारुफ कराना और इस्लाम को पहुंचाना ये काम हुआ। तो इस पर यह बात अर्ज की गई कि सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से छोटा है और इस्लामी फतुहात जो है वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे क्यों नहीं हुई जबकि मकाम आपका ऊंचा है? तो इसकी उलमाए किराम ने ये वजह बयान की है कि जो बेस है, बेस असल है, जिस पर कोई चीज खड़ी की जाती है वो असल है, बाद की तामीर असल नहीं है। अगर बेस फाउंडेशन मजबूत ना हो, कमजोर हो, तो तामीर भी कमजोर हो जाएगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त लोग इस्लाम को और ईमान को छोड़कर भाग खड़े हुए थे, उस वक्त इस्लाम को और ईमान को हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके मुबारक पर कायम किया। फिर उसी कायम करदा फाउंडेशन पर आपने उसी जिहाद को जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक में 28 हुए, उसी को आगे बढ़ाया और उसमें हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपह सालार बनाकर आपने मुल्कों को रवाना किया। और वो जो आपने बुनियाद और सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़ाया। तो सिस्टम असल होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो जिसने उसने अपनी दलील में पेश कर दिया कि भाई ये जो धुआं निकला है ये मेरी दलील है, और दूसरे जो ये जलजले आ रहे हैं इंडोनेशिया का है, गल्फ का है और जापान का है, ये भी मेरी दलील है, और जो खिंजीर कत्ल हुए हैं स्वाइन फ्लू के नाम से, ये भी मेरी दलील है। इसलिए चूंकि सारी दलीलें पूरी हो रही है तो मेरा दावा बिल्कुल अपने तौर पर सच्चा है। और अकल के अंधों ने उस दावे को तस्लीम कर लिया। जिस वक्त मैं ये पिछली बातें इसलिए सुना रहा हूं, ये इसी से रिलेटेड है, नहीं तो इसको अलग अलग सुनाने की जरूरत थी। लेकिन आज हो ये रहा है कि हमें इल्म से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, हम कम आधी अधूरी बातें जानते हैं और उन आधी अधूरी बात को लेकर के आदमी अपने आप को अक्लमंद माने हुए है। उसी की वजह है कि आदमी कहीं भी किसी भी गड्ढे में गिर जाता है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई है, आप अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि दज्जाल की आशिक सबसे ज्यादा औरतें होंगी। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है, और जिसको इसमें तरद्दुद और शक हो वो कोर्ट में जाके देख सकता है। मुसलमान लड़कियां, अक्सर मुस्लिम लड़कियां, अच्छे दीनदार घरों के, जिनके लोग मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ने आते हैं, वो लड़कियों के नाम थाना कोर्ट में, पुणे कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट में लटके हुए हैं। आप जाकर के देखो। और अक्सर वो लड़कियां जिनसे वो निकाह करने के लिए तैयार, शादी करने के लिए तैयार है, वो अक्सर उनमें हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है या शिया है। नहीं, मिनिमम थोड़ी सी तादाद शियों की है, ज्यादा उसमें तादाद हिंदुओं की है, कुछ क्रिश्चियन की है। और मुमरा में एक
जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं। उसमें एक एडवोकेट है, वो जा करके कोर्ट में वो एड्रेस निकालते हैं, फिर उन एड्रेस को लेकर के उनके घरों पे जाते हैं, उनके घर वालों को बताते हैं, और उनमें से कितनी कारगुजारियां ऐसी हैं कि उनके घर वाले भी इस पर राजी हैं उन हिंदुओं से शादी करने के लिए। तो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं। तो ये मुसलमानों की वो लड़कियां जिन्होंने कुरान के माहौल में आके खोली, जो पांचों वक्त अजान कानों से सुनती हैं, क्योंकि एक और बड़ी अच्छी वो मुसलमानों के लिए रास्ता था और उन लड़कियों के लिए खासकर रास्ता था ईमान पर आने का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आखिर जमाना आएगा जिसमें आदमी शाम करेगा ईमान की हालत में और सुबह कुफ्र की हालत पर होगी, और सुबह उसकी ईमान की हालत पर होगी और रात उसके कुफ्र की हालत पर होगी, और कुफ्र को पसंद करना भी कुफ्र है। तो अब ये लड़की रात को इसने ईशा की अजान सुनी, सुबह में फजर की अजान सुनी, घर से बुरके में निकली, कॉलेज की किताबें ली और घर से इसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट उठाया और सीधी कोर्ट में गई और जाकर के वहां पे सिग्नेचर कर दिए कि मैं इसके साथ शादी करूंगी और इसके मजहब को मैं पसंद करती हूँ, इसी के साथ रहूंगी। अब ये इसने रात को भी अजान सुनी, फजर में भी अजान सुनी, घर वाले भी समझ रहे मेरी बेटी कॉलेज में गई है, पढ़ने के लिए गई है, और ये गई सीधी कोर्ट में कुफ्र पर सिग्नेचर करने के लिए। और फिर कोर्ट ने उसमें ये सहूलत दी है कि 1 महीने तक वो लटकी रहती है लिस्ट, उस 1 महीने तक ये 5 वक्त की अजान सुनती है घर में जहां रहती है, और हो सकता है मुमकिन है कि घर के लोग नमाज भी पढ़ते हो, मुमकिन है रमजान का महीना भी हो, रमजान जैसा मुकद्दस रोजा भी रखा हो, एक आध नमाज भी पढ़ ली हो, कोई तकरीर भी सुन ली हो, जबरदस्ती सुन ली हो, जैसा कि आज माइक में चिल्ला चिल्ला के तकरीर हो रही है, वो भी सुन ली हो कान में, लेकिन ये पूरा महीना गुजर गया कुफ्र की उसके पसंदीदगी में, और उसके बाद उसने जाकर के उस सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर कर दिया और निकाह हो गया। अब जिस लड़की के घर वाले उस पर खुश है या उनकी परमिशन है, इनके ईमान का जायजा लो, क्या ये लोग इनका खात्मा ईमान पर होगा? तो दज्जाल की जो पीछे चलने वाली तादाद होगी वो औरतों की होगी, और दज्जाल की जो पेश जो उसकी सिपह सालार होगी, जो उसकी कमांडर इन चीफ जिसको बनाया होगा, वो भी लेडी होगी और उसका नाम लाइबा होगा। मुसलमानों में ये नाम भी बहुत अच्छे से रखा जाता है, वो फैलाया जा रहा है इसको। तो सोचना चाहिए हमें, आज मुसलमानों के बच्चे वो सीधे सीधे बाल खड़े करके चल रहे हैं। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत अत्ताला शानों में है यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया और दूसरे हुजूर अलैहिस्सलाम को बनाया, और सबसे ज्यादा बदसूरत अल्लाह जल्ल जलालुहु ने पूरी कौम में, सबसे ज्यादा बदसूरत इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आखिरी इंसान तक सबसे ज्यादा बदसूरत अल्लाह पाक ने दज्जाल को बनाया। उसकी एक आंख बिल्कुल खत्म है, दूसरी आंख भी उसकी ऐसे नहीं है जैसे हमारी है, वो बाहर लटक रही है, वो अंगूर की तरह लटकी हुई है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की 2 हदीस है, एक हदीस शरीफ में कहा गया कि वो बाईं आंख से काना है, और एक रिवायत में है कि वो दाईं आंख से काना है, क्योंकि जो आंख बाहर लटकी हुई है वो कोई आंख नहीं है, वो भी काना ही है, उससे भी वो ऐसी तो उसकी आंखें हैं, बाल उसके सीधे खड़े हैं, से के जो कांटे होते हैं ना ऐसे, पोर्कुपाइन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसके कांटे जो बिल्कुल सीधे की तरह से ऐसे ही बाल। अब आप जाके मॉल में देख लीजिए, वो सीधे सीधे बाल वाले वो मुजस्समे लगे हुए हैं, और मुसलमान लड़कों के आप गौर कीजिए, आप मतलब इसको मेरे कहने से मत मानिएगा, आप हिंदू इलाकों में भी घूमो और उनके बच्चों के बाल भी देखो, और मुसलमान इलाकों में भी घूमो और उनके बाल भी देखो। ज्यादातर 95% मुसलमानों के जो डिजाइन है वो दज्जाल के डिजाइन पर है। हिंदुओं में कम है लेकिन बहुत कम है, वो आज भी सिंपल मिजाज पर है। क्यों? क्योंकि निशान दज्जाल का मुसलमान है, और मुसलमान बच्चे जो नौजवान नस्ल है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, कबूल कर रही है। और पहले ये होता था अफगानिस्तान वार से पहले कि जो खंजीर की जो चर्बी थी वो अंदर वो छिपा करके चीजों के अंदर मिक्स की जाती थी। इस वक्त में क्या हो रहा है, वो उसका एक कोड बनाया गया है, कोड नाम दिया गया है उसका, जैसे 371 है, 372 है, ये दोनों खंजीर के कोड है। तो ये अब बाकायदा इनको चीजों के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई देखिए इसमें खंजीर है। और जो मैकडोनल्ड्स है और ये जो पिज्जा हट है, इनमें तो आमतौर पर खंजीर खिलाया जाता है, और उनमें वो बिल्कुल उसको मना नहीं करते। कोई आपको पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ है, ये पोर्क है, आपको बताएंगे, लेकिन उसमें हमारे बच्चे बैठे हैं वो खा रहे हैं। ठीक है, अगर पोर्क ना भी खाया हो तब भी उन बर्तनों में आप खा रहे हैं, खाना उसमें खा रहे हैं।
یہ المیہ ہے ایمان کا اس وقت میں. اور دیکھیے یہ تب ہے جب علماء کے واعظ و نصیحت بھی ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت بھی ہے، اور اس پر ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ دعوت و تبلیغ میں ہیں اور نہ واعظ و نصیحت میں ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ امت کی فکر میں رات دن ایک ایک فرد کو لے کر کے سمجھا رہے ہیں، بالکل اس سے الگ ہو کر کے. الگ پلیٹ فارم بھی ہے، اور اس میں سے ہو گیا انشاءاللہ اگر